Hello everyone, this is Gaurav Agrawal from Agrawal Classes. In the last videos, we have already discussed about uniform motions, non-uniform motions, Newton's laws of motions. Now we will go one step beyond, that is work, energy and power. So in this video, we will discuss about work, energy and power. Now let's start. What is work? Work is said to be done by a force when the body is displaced actually through some distance in the direction of the applied force. हम कहेंगे किसी फोर्स के द्वारा कोई वर्क किया गया है जब बॉडी जो है वो कुछ डिस्प्लेस हो जाए उस डायरेक्शंस में जिस डायरेक्शंस में हमने फोर्स को अप्लाई किया. That is, work is said to be done by a force when the body is displaced actually through some distance in the direction of the applied force. Applied force की directions में अगर force लगाने पे अगर body कुछ displace हो जाती है कुछ distance, तब हम कहेंगे कि work हुआ. यहीं से इसका फॉर्मूला भी निकल के आता है, that is work done बराबर force into displacement in the direction of the force applied, that is W is equal to force into displacement. Now since we have already seen that force and displacement, these are vector quantities, so we can say that work done is the product of two vector quantities. So we can write W is equal to F vector dot S vector, that is dot product of these two vector quantity. So we can write it as Fs cos theta. Therefore W is equal to Fs cos theta. That where theta is the angle between force and displacement. Now the dimensional formula of work is equal to, that is m1 l2 t की power minus 2. How? Since work is barabar force into displacement, we know that the dimensions of force is m1 l1 t की power minus 2. The dimension of displacement is l. So the product of these two makes m1 l2 t minus 2. So the dimensions of work is m1 l2 t की power minus 2. Now the SI unit of work is joule. Now the question arises how we can define joule. Therefore work done is said to be 1 joule when a force of 1 Newton actually moves a body through a distance of 1 meter in the direction of the applied force. हम कहेंगे कि जो वर्क डन है वो 1 जूल हुआ व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन का फोर्स एक्चुअली मूव कराता है एक बॉडी को थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी तक in the direction of the applied force की direction में. So we can take here F is equal to 1 Newton, S is equal to 1 meter and theta takes 0 degree. So we have 1 joule that is equal to 1 Newton meter. And now इसी से ही हमने इसकी definition जो है वो बनाई. Also मैंने जैसे पहले ही बोला था आपको कि वर्क डन जो है that is a scalar quantity. Since क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज का, और डॉट प्रोडक्ट जो है दो वेक्टर क्वांटिटीज का वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है. इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो. तो इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है. सो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वर्क डन है वो पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है, नेगेटिव वर्क भी हो सकता है और जीरो वर्क भी हो सकता है. अब हम उन केसेस को देखेंगे कि कब वर्क, उन कंडीशंस को देखेंगे कि कब वर्क पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखेंगे कि पॉजिटिव वर्क एज W बराबर एफ एस कोस थीटा. तो ये डिपेंड करता है एंगल थीटा पे. व्हेन थीटा इज एक्यूट, अगर थीटा एक्यूट है दैट इज
लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है, तो कोस थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इन दैट केस जो वर्क डन होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सो पॉजिटिव वर्क के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि जो एंगल थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो एक्यूट होना चाहिए, दैट मीन्स लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री से कम होगा उस केस में cos थीटा पॉजिटिव होगा, तो वर्क डन जो है वो भी पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ए बॉडी फॉलिंग फ्रीली इज नेगेटिव। ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क किया जाता है एक बॉडी पे जब वो फ्रीली नीचे गिरती है वो पॉजिटिव होता है। नाउ द नेगेटिव वर्क, इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क व्हेन थीटा इज ऑब्ट्यूज, अगर थीटा ऑब्ट्यूज है मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्रीज, मोर देन 90 डिग्री, तब cos थीटा क्या होगा, नेगेटिव होगा, एंड हेंस वर्क डन इज नेगेटिव। तो वर्क डन के लिए जो वर्क डन के नेगेटिव होने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि थीटा जो है, जो एंगल थीटा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। अगर थीटा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा उस केस में क्या होगा, cos थीटा जो है वो नेगेटिव होगा एंड वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन ए बॉडी मूविंग अपवर्ड, ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क किया जाता है एक बॉडी पे जब वो अपवर्ड मूव कर रही होती है, दैट इज नेगेटिव। और नेक्स्ट एग्जांपल और ले सकते हैं, दैट इज व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन ए मूविंग बॉडी व्हीकल वर्क डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स इज नेगेटिव। जब एक मूविंग व्हीकल्स पे ब्रेक लगाया जाता है तो जो वर्क डन होता है ब्रेकिंग फोर्स के द्वारा वो नेगेटिव होता है। नाउ जीरो वर्क, when force applied F or the displacement S or both are zero, work done W बराबर Fs cos theta is zero। यदि फोर्स जो लगा रहे अगर वो जीरो हो या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तब उस केस में वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। आल्सो अगेन व्हेन एंगल थीटा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, अगर एंगल थीटा जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर वो 90 डिग्री है उस केस में भी क्या होगा, cos थीटा बराबर cos 90 दैट इज इक्वल टू जीरो। तो उस केस में भी क्या होगा, वर्क डन जो होगा वो जीरो होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। व्हेन वी पुश हार्ड अगेंस्ट ए वॉल द फोर्स we exert on the wall does no work because air displacement is zero। जब हम पुश करते हैं हार्ड एक वॉल के अगेंस्ट तो जो फोर्स हम वॉल पे लगाते हैं उससे द्वारा कोई भी कार्य कोई भी वर्क नहीं होता क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। सिमिलरली ए वेट लिफ्टर holding a 100 kilogram mass steadily on his shoulder for 25 seconds does no work on the load during this time because again displacement is equal to zero। Next example is when a coolie carrying some load on his head moves on a horizontal platform, work done by the coolie is zero because here theta is equal to 90 degree and W is equal to Fs cos theta that is equal to Fs cos 90 degree बराबर जीरो। जब एक कुली जो है जो कि कैरी कर रहा है कुछ लोड को अपने हेड पे और एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में चल रहा है तो जो वर्क डन होगा कुली के द्वारा वो जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है एंगल जो है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो 90 डिग्री है। सो वर्क डन जो है वो जीरो हो गया। नाउ कंजर्वेटिव फोर्सेस, a force is said to be conservative if work done by or against a force in moving a body depends only on the initial and final position of the body and not on the nature of the path followed between the initial and the final positions। एक फोर्स को हम कंजर्वेटिव कहेंगे इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स, यदि उस फोर्स के द्वारा वर्क डन यानी उस फोर्स पे जो वर्क डन लग रहा है एक बॉडी को मूव कराने में वो केवल डिपेंड करे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ऑफ द बॉडी की केवल इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे
एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ, और उस पाथ के नेचर पे डिपेंड ना करे जो कि फॉलो किया गया बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो पाथ फॉलो किया गया उस पाथ के नेचर पे वो डिपेंड ना करे, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करे। आई विल रिपीट अगेन, दैट इज ए फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव if work done by or against the force in moving a body depends only on the initial and final position of the body, कि वो केवल बॉडी की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करे, एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ, और उस पाथ के नेचर पे डिपेंड ना करे जो कि फॉलो किया गया बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स। Now there are some properties of conservative forces. Now let's see. First property is work done by or against a conservative force in moving a body from one position to the other depends only on the initial and final position of the body. जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो केवल डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे ऑफ द बॉडी, जैसा कि हमने अभी देखा। Second point is work done by against a conservative force does not depend upon the nature of the path followed by the body in going from initial position to the final position. Initial position से final position में जाने के लिए जो path follow किया गया, तो जो work done होता है conservative force के द्वारा वो उस path पे depend नहीं करता। And the third point is the work done by or against a conservative force in moving a body through any round trip, that is closed path, जहाँ where final position coincides with the initial position of the body is always zero. जो वर्क डन होगा एक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा या उसके अगेंस्ट में इन मूविंग ए बॉडी को मूव कराने में थ्रू एनी क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ पे जहाँ पर फाइनल पोजीशन जो होती है वो कोइंसाइड कर जाती है इनिशियल पोजीशन के साथ, वहां पे वर्क डन जो होगा कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वो हमेशा जीरो होगा। नाउ वी विल डिस्कस दैट इज डिस्कस अबाउट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ए फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर डिपेंड्स ऑन द पाथ followed between these two positions. इन दो पोजीशंस के बीच में, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशंस के बीच में जो पाथ फॉलो किया गया, अगर किसी बॉडी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है वो उस पाथ पे डिपेंड करे, तब हम कहेंगे कि जो फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। A force is said to be non-conservative if work done by or against the force in moving a body को मूव कराने में from one position to another depends on the path, वो डिपेंड करे उस पाथ पे followed between these two positions. For example, frictional force. Now, energy. Energy of a body is defined as the capacity or ability of the body to do the work. एनर्जी जो है किसी बॉडी के उसे हम डिफाइन करते हैं उसकी कैपेसिटी या एबिलिटी के रूप में टू डू द वर्क को करने की। व्हेन ए बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग मोर वर्क, जब एक बॉडी कैपेबल होती है ज़्यादा काम करने के लिए, इट इज सेड टू पोजेस मोर एनर्जी, तब हम कहते हैं कि उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लाइक वर्क एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, वर्क की तरह ही एनर्जी जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। The dimensions of energy again same as that of work, जो dimensions है energy के वो भी same है work की तरह, that is m1 l2 t की पावर -2। Again the SI unit of energy is joule which is same as that of work. In CJ system the unit is ergs and we know 1 erg is बराबर 10 की पावर -7 joule. Now एनर्जी जो होते हैं बेसिकली दो तरीके की होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज द एनर्जी possessed बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी की
ये वो एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी प्रोड्यूस करती है अपनी मोशन से. फॉर एग्जाम्पल, ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन कैन pass थ्रू ए टारगेट ऑन अकाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट. बुलेट की काइनेटिक एनर्जी के कारण ही वो टारगेट पे पहुंच पाती है. अब हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा. तो उसको ड्राइव करने के लिए लेट अस सपोज m बराबर मास ऑफ ए बॉडी. हमने एक बॉडी ली जिसका मास m है जो कि इनिशियली रेस्ट पे है. F बराबर फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी. ds बराबर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होगा फोर्स के द्वारा, वी नो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो dw इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, f फोर्स है एंड ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. नाउ सिंस जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स की डायरेक्शन में, सो एंगल थीटा इज 0 डिग्री. तो देखो dw इज इक्वल टू f डॉट ds बराबर f ds cos थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो इट्स f ds cos 0 डिग्री. So we have dw is equal to f ds. Now if a is a acceleration produced by the force, then we know from Newton's second law of motion that f is equal to ma. Also we know that acceleration is a change in velocity upon time. So a is equal to dv upon dt. So this becomes f is equal to ma barabar m dv upon dt. Now using in above equations we have dw is equal to, now putting the value of f here, that is m dv upon dt into ds. Now हमने ds अब अंदर ले लिया एंड dv बाहर निकालते, तो दैट इज नाउ बराबर इक्वल टू m ds अपॉन dt dv. सो dw बराबर mv dv. Now we know that velocity is equal to displacement upon time. So ds is small displacement, so we can write ds upon dt is equal to v. Now, so total work done by the force in increasing the velocity of the body from 0 to v is w is equal to, now integrate it by taking limit from 0 to v mv dv. Now m is a constant, so इसे हम बाहर निकाल देंगे. सो m इंटीग्रेट v dv बाय टेकिंग लिमिट 0 to v, एंड v dv का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज v स्क्वायर अपॉन 2 एंड लिमिट इज v0. सो वी गेट द फॉर्मूला w इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, and this work done is actually the kinetic energy of the body. So kinetic energy of the body is equal to half mv square. So we can define kinetic energy in another way, that is kinetic energy of a body is half the product of the mass of the body and square of velocity of the body. So जो kinetic energy है body की, उसको हम define कर सकते हैं half of the product of mass of the body and square of the velocity of the body. बॉडी की वेलोसिटी के स्क्वायर और उसके मास के प्रोडक्ट के आधे के रूप में हम काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं. अगेन जो काइनेटिक एनर्जी होती है बॉडी की वो हमेशा पॉजिटिव होती है. इट कैन नेवर बी नेगेटिव, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. नाउ अब एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम. काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है. लेट m बराबर मास ऑफ द बॉडी. अब हम ड्राइव करेंगे इस रिलेशन को. तो इसके लिए मैंने एक बॉडी ली जिसका मास m है. लेट v बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. सो लीनियर मोमेंटम वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. सो लीनियर मोमेंटम दैट इज p बराबर m इंटू वी, दैट इज mv. एंड देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज हाफ mv स्क्वायर. नाउ multiplied by m upon m. So these become 1 upon 2m into m square v square. Since we know p is equal to mv, so the m square v square is equal to p square. So this becomes 1 upon 2m mv का whole square is equal to 1 upon 2m p square. Hence kinetic energy is equal to p square upon 2m.
The above equation represents the relation between kinetic energy and linear momentum. तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर, पी इज लीनियर मोमेंटम, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है रिलेशन को बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। नाउ वर्क एनर्जी थ्योरम, इसे हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज डिस्प्लेसिंग बॉडी, जो वर्क डन होता है एक नेट फोर्स के द्वारा एक बॉडी को डिस्प्लेस कराने में, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। वो इक्वल होता है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया उसके। हम दोबारा कहता हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वर्क डन बाय नेट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग ए बॉडी, एक बॉडी को डिस्प्लेस कराने में जो वर्क डन किया गया वो इक्वल होता है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया उसके। अब हम इसका प्रूव करेंगे। सपोज m इज द मास ऑफ द बॉडी, टेक लेट अस टेक u बराबर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, f इज द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी along its direction of motion, a is the acceleration produced in the body, v is final velocity of the body after t seconds, ds बराबर small distance moved by the body in the direction of the force applied. Now from Newton's second law of motions we have F is equal to ma. Therefore the small amount of work done by the applied force on the body is dW is equal to F vector dot ds vector. Since displacement is on the applied displacement is in the direction of the applied force, so here angle theta is equal to 0 degree. So we have FDS cos theta बराबर FDS cos 0 degree. So dW is equal to FDS. Now from Newton's second law we know F is equal to ma, so put here F is equal to ma. Therefore dW is equal to FDS बराबर ma ds. Now we know a is equal to dv upon dt, since we know acceleration बराबर change in velocity upon time. Now put here, therefore dw is equal to m dv upon dt ds. नाउ अब हम ds को अंदर ले लेंगे, dv को बाहर आउटसाइड ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। सो वी हैव dw इज इक्वल टू m ds अपॉन dt dv। आल्सो वी नो ds अपॉन dt क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, दैट इज v, सो इट बिकम्स mv dv। Now the total work done by the applied force on the body in increasing its velocity from u to v, टोटल वर्क डन निकालने के लिए अब हम इस वर्क जो हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाला था उसको हम इंटीग्रेट करेंगे बाय टेकिंग लिमिट फ्रॉम u टू v। सो वी हैव w इज इक्वल टू इंटीग्रेट mv dv बाय टेकिंग लिमिट फ्रॉम u टू v। m इज ए कांस्टेंट, तो इसे हम बाहर निकाल देंगे। नाउ इंटीग्रेट द इंटीग्रेबल टर्म्स, दैट इज v dv बाय फ्रॉम लिमिट u टू v, एंड द प्रोडक्ट जो रिजल्ट हमारे पास निकल के आया वो ये निकल के आया कि W इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। नाउ हाफ एम यू स्क्वायर दैट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड रिप्रेजेंट इट एज के आई, एंड हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, दैट इज इक्वल टू के एफ। So work done is equal to kf minus ki, that is the change in kinetic energy of the body, and this is the work energy theorem or work energy principle. तो यही वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है जो कहता है कि जो वर्क डन होता है एक बॉडी को डिस्प्लेस कराने में वो इक्वल होता है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया उसके। ये कहने मतलब है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वही नेट फोर्स के द्वारा उस बॉडी पे किया गया वर्क डन है। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। नाउ अगर ये वर्क डन पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई, विल इंक्रीज करेगी। एंड व्हेन वर्क इज नेगेटिव, जब वर्क नेगेटिव होगा दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। नाउ potential energy. The potential energy of a body is defined as the energy possessed by the body by virtue of its
पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशंस इन सम फील्ड। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक बॉडी की, वो एनर्जी होती है जो कि एक बॉडी अपनी पोजीशन से पोजेस करती है, ऑक्यूपाई करती है कॉन्फ़िगरेशन से। पोटेंशियल एनर्जी के दो जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Gravitational potential energy of a body is the energy possessed by the body by virtue of its position above the surface of the earth. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है बॉडी की, वो एनर्जी होती है जो कि बॉडी अपनी पोजीशन से ऑक्यूपाई करती है अर्थ के सरफेस के ऊपर। नाउ in order to calculate gravitational potential energy, suppose m is the mass of the body, g acceleration due to gravity on the surface of earth, and h height जिससे हमने बॉडी को रेज किया। तो जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शंस को ओवरकम करने के लिए, दैट इज F इज इक्वल टू mg, दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी। Now as the distance moved is in the direction of the force applied, क्योंकि जो डिस्टेंस मूव हो रही है वो फोर्स की डायरेक्शन में, तो जो एंगल थीटा होगा हेयर वो 0 डिग्री होगा। एंड देन आल्सो वी नो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो W इज इक्वल टू फोर्स इज F and distance is h, so and we know from above F is equal to mg, so W is equal to F into h बराबर mgh। और ये जो वर्क होता है वो स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एंड इज नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। Now when the body is released from height h, जब बॉडी को रिलीज किया जाता है हाइट h से, इट कम्स डाउन विद एन इंक्रीजिंग स्पीड। जब एक बॉडी को रिलीज किया जाएगा एक हाइट h से, इट कम्स डाउन विद एन इंक्रीजिंग स्पीड, ये नीचे आती है इंक्रीजिंग स्पीड के साथ। तो वो वेलोसिटी v विद विच द बॉडी हिट्स द ग्राउंड, वो वेलोसिटी v जिससे बॉडी हिट करेगी ग्राउंड को, उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फैक्ट से कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है बॉडी की एक हाइट h पे, मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, वो अपने आप को मैनिफेस्ट कर लेती है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी के रूप में ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पे पहुंचने के बाद। सो इन दैट केस जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो इक्वल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के, and we know kinetic energy is half mv square, it becomes equal to mgh। हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो वी गेट v is equal to √2gh। तो ये वो वेलोसिटी होती है जिससे बॉडी जो होती है वो हिट करती है ग्राउंड को। नाउ अगेन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिफाइंड होती है केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करती। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, अब हम एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी को देखेंगे और यहीं से हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझेंगे। When the spring is compressed or elongated, it tends to recover its original length on account of elasticity। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस या इलोंगेट करते हैं तो अपनी ओरिजिनल लेंथ में आने के लिए कोशिश वो अपनी ओरिजिनल लेंथ में कुछ देर बाद आ जाती है इलास्टिसिटी के कारण। तो जो फोर्स होता है ट्राइंग टू ब्रिंग द स्प्रिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फिगरेशन, जो फोर्स वहाँ पे लगता है स्प्रिंग पे, स्प्रिंग को वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए, कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए इज कॉल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स, उसे हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं और स्प्रिंग फोर्स। नाउ फॉर स्मॉल स्ट्रेच और कंप्रेशन एक्स, एक स्मॉल स्ट्रेच के लिए और कंप्रेशन मैंने माना एक्स है वो स्प्रिंग ओबे हुक्स लॉ, स्प्रिंग जो होती है वो ओबे करती है हुक्स लॉ को। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच और कंप्रेशन। सो वी हैव restoring force direct power stretch or compressions, that means F is direct proportional x। since restoring force जो होता है वो स्प्रिंग को उसके ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे लेके आएगा, दैट मीन्स इट अप्लाइज अपोजिटली
डायरेक्शन में. So it f should be negative here. So that means minus f is directly proportional to x, or f is equal to minus kx, where k is a constant of the spring and is called the spring constant. Here negative sign indicates that restoring force is directed always towards the equilibrium positions. यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो हमेशा डायरेक्ट होगा टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन. वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर डायरेक्टेड होगा. नाउ लेट द बॉडी बी डिस्प्लेस थ्रू एन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस dx. अब हमने बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया. बॉडी यहाँ पे स्प्रिंग है. जब हमने बॉडी को डिस्प्लेस कर दिया इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस dx पे अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स. So जो small amount of work done होगा in increasing the length of the spring by dx, स्प्रिंग की लेंथ को dx तक बढ़ाने में, that is dw is equal to minus f dx, and we know from here above f is equal to kx, so put here that is dw is equal to kx dx. So total work done in given displacement x, total work done होगा displacement x देने में, that is w is equal to integral 0 to x kx dx. Since k is a constant, take it outside, and x square upon 2 from limit x to 0 to x. Now we get w is equal to 1 upon 2 kx square. और ये जो वर्क डन होता है वो स्टोर होता है स्प्रिंग में एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में. सो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है स्प्रिंग की, दैट इज इक्वल टू 1 upon 2 kx square. तो ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स. एक डेफिनेट अमाउंट में वर्क जो है वो किया जाता है अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स, बोथ इन कंप्रेसिंग और इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग. ये जो वर्क डन होता है वो स्टोर होता है स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है. And thus potential energy of a spring is the energy associated with the state of compression or expansion of an elastic spring. So जो potential energy होती है कि spring की, ये वो energy होती है जो कि associated होती है with the state of compressions or expansion after of an elastic spring. Now the mechanical energy. Mechanical energy of a body is the sum of the kinetic energy and potential energy of the body. जो मैकेनिकल एनर्जी होती है एक बॉडी की वो सम होती है, उसे हम डिफाइन करते हैं सम के रूप में ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू के प्लस वी. आल्सो इट्स कंजर्वेशन की अब हम बात करेंगे. जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है एक सिस्टम की वो कंजर्व्ड होती है if the force is doing work on it are conservative. यदि जो फोर्स जो वहाँ पे काम कर रहे हो अगर वो कंजर्वेटिव हो. दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी. जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है एक सिस्टम की वो कंजर्व होती है द फोर्सेस, यदि फोर्स जो उस पर काम कर रहे हैं वर्क कर रहे हैं वो कंजर्वेटिव हो. Suppose a body undergoes a small displacement delta x under the action of conservative force. हमने एक बॉडी ली जिसमें एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स हुआ अंडर द एक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स. एक्स अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी जो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो लेट मैंने रिप्रेजेंट किया चेंज को इन काइनेटिक एनर्जी बाय डेल्टा के. सो डेल्टा के बराबर एफ डॉट डेल्टा एक्स. एफ इज फोर्स, डेल्टा इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट. एज द फोर्स इज कंजर्वेटिव तो जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होगा उसे हम डिफाइन करेंगे एज माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स. सो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट डेल्टा एक्स. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे एंड वी गेट डेल्टा के प्लस डेल्टा वी इज इक्वल टू 0. और वी नो दैट किसी भी क्वांटिटी का जो डिफरेंशियल होता है वो जीरो है. इसका मतलब ये कि वो क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है. सिंस जो डिफरेंशियल है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है जीरो, विच मीन दैट के प्लस वी इज इक्वल टू कांस्टेंट. दैट इज
द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द बॉडी इज ए कांस्टेंट, कि जो सम होता है काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का ऑफ द बॉडी वो कांस्टेंट है, हेंस मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कांस्टेंट एंड दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अब इसमें कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने वाली है, वो ये कि जो नेगेटिव वैल्यू होती है मैकेनिकल एनर्जी की इंडिकेट्स ए बाउंड स्टेट। अगर मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो वो इंडिकेट करती है एक बाउंड स्टेट को। फॉर एग्जांपल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम, एक एटॉम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, एंड ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड ए प्लैनेट, और एक प्लैनेट के अराउंड जो एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रही है, बोथ आर इन बाउंड स्टेट्स। ये दोनों बाउंड स्टेट में ही होती हैं, हैविंग नेगेटिव मैकेनिकल एनर्जी, जिनकी मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है। नाउ द पावर ऑफ ए पर्सन और मशीन इज डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन बाय इट। पावर जो होती है एक पर्सन या मशीन को हम डिफाइन करते हैं उस टाइम रेट के रूप में जिसमें वर्क जो है उसके द्वारा किया जाता है। तो दैट मीन्स पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। We can write it as P is equal to W upon T. Also, power can be expressed as the dot product of force and velocity. पावर को हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी के रूप में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज P is equal to F vector dot V vector. The dimensions of power is P is equal to W upon T, and we know the dimension of work is M1 L2 T की power minus 2 and for T is T. So the dimension of B is M1 L2 T की power minus 2 upon T, and this becomes M1 L2 T की power minus 3. So the dimensional formula of power is M1 L2 T की power minus 3. The absolute unit of power is SI is watt. जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है पावर की SI में वो वॉट होती है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल W, एंड 1 watt is equal to 1 joule per second. इसी तरीके से हम 1 watt को भी डिफाइन कर सकते हैं। पावर ऑफ एन एजेंट इज सेड टू बी 1 watt इफ इट कैन डू 1 joule ऑफ वर्क इन 1 second. पावर जो है किसी भी एजेंट की उसे हम 1 watt कहेंगे यदि वो 1 joule वर्क कर सके 1 second में। Also there is some bigger unit of work that is kilowatt. 1 kilowatt is equal to 10 की power 3 watts. 1 megawatt is equal to 10 की power 6 watt. और एक और यूनिट होती है मोस्ट कॉमन है हॉर्स पावर, तो 1 horse power is equal to 746 watt. वर्क एनर्जी एंड पावर यहाँ पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू टू वॉच इट।